Hello. Good morning, everyone. Welcome to the Hindu News Analysis of September 4th, 2022. I am Harshvardhan Tripathi, and we are going to discuss important current affairs from the day from the Hindu newspaper, obviously. So, today's newspaper was a heavy one, a hefty one. Some of the topics have to be studied in depth, whereas other topics, the preliminary assessment of those topics would help serve the purpose for you. I have tried to enlist all the topics over here, and the index goes like this. I've also tried to highlight the subject areas or the papers from which it is important. So, first topic, the self-sufficiency in fertilizer manufacturing is related to nano urea, to which Indian Council of Agriculture Research has given, let's say, a fast track assessment procedure. So it is very important because you see we are a fertilizer import dependent country, and a lot of public exchequer is wasted because we want to increase our crop production. Second, meeting of Home Minister with Southern Zonal Council. So Zonal Council is an important topic from GS2. तो ये समझेंगे कि जोनल काउंसिल क्या होता है, क्यों बनाते हैं जोनल काउंसिल, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कितने जोनल काउंसिल की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी, कौन उसको चेयर करता है. राजपथ और पार्लियामेंट बिल्डिंग पे आ जाएं तो न्यू राजपथ जो है वो अभी 8 सितंबर को इनॉग्रेट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर. अब ऐसे में हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो रिक्वायरमेंट है सेंट्रल विस्टा का, दैट यू नो दैट इट वाज देयर बिकॉज डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है 2026 में होगी, एंड पर जो मेंबर्स रिप्रेजेंटेशन है वो आइडियली होना चाहिए 1 मिलियन में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. करेंटली ये रेशियो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है और हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा चाहिए, तो वी नीड अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. हाउएवर दिस वाज नॉट देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर. द न्यूज़ वाज रिलेटेड टू न्यू राजपथ, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. फोर्थ इज इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इज वाइड हो रहा है. इंडिया ट्रेड डेफिसिट इज वाइडनिंग. तो ट्रेड डेफिसिट क्या सिनारियो होता है, कब होता है ये ट्रेड डेफिसिट, और उसको अगर ये बढ़ता हुआ नजर आए, व्हाट विल बी द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट विल बी टेकिंग टू मिटिगेट दिस. ऑल ऑफ दिस हैव टू बी स्टडीड फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, राइट. फिफ्थ टॉपिक पे आ जाए. इंडिया अपने इंडिजिनस तेजस को टेस्ट करने वाला है. इट इज द सेकेंड वर्जन ऑफ तेजस एयरक्राफ्ट. दो फर्स्ट वर्जन के सारे एयरक्राफ्ट अभी हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सेकेंड वर्जन को 2027 तक इंडक्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री ने. सिक्स्थ है, जस्टिस चंद्रचूड को नालसा का हेड चुन लिया गया है. तो जस्टिस चंद्रचूड कौन है और ये नालसा क्या होता है. सेवेंथ, throwing some light on the Bengali women freedom fighters. Now this was a very unique topic that came today. So there is a book that is being written about the women freedom fighters, and interestingly you will find that most of the Bengali women freedom fighters were from Bangladesh, current Bangladesh. Moving further ahead, so 8th, 9th and 10th topic we are going to discuss, whereas 11th, 12th and 13th topic, that is UGC college cluster program, Vostok 2022 annual exercise, and states inflation rates are different. These three are self-explanatory in nature. If you will read the editorial, if you will read that particular article, you will come to know what it is talking about. So I'll just give you a preliminary assessment as to what it is. Whereas 8th topic, if we talk about creative economy, exports have increased, and what is creative economy, what are the exports included in that, and why India is focusing on creative economy, we need to understand that. US approves $1.1 billion arm deal to Taiwan. Now, this particular news is not basically created or included from question point of view, rather from ideological point of view. You see, United States of America is habituated to interfere in your crisis and then sell you their weapons and ammunitions in the garb of providing you certain kind of security. It might be the case that Taiwan might have demanded it, but we need to understand why US is the way US is, right? So initially you will find that when India and Pakistan were having certain issues, Donald Trump basically asked that he would be wanting to mediate the Kashmir issue, and India took a very clear stand by mentioning that we don't want United States of America's interference because it is a bilateral matter, and we are self-equipped that we can handle this particular situation, because this is the habit of USA. It goes into your personal conflicts or bilateral conflicts and then tell you that you might be attacked because the other country is so strong, and then you need defense weapons from us.
It is not going to fight with you side by side. What happened with Ukraine? It's not fighting with Russia side by side. Rather, what it is doing, it is using Ukraine's shoulder to test, or you can say sell, their ammunitions, rockets, surface to air missiles, air to air missiles, and target Russia indirectly. This is all that we call a nuanced version of a proxy war. It's not exactly a proxy war, but a nuanced version, or you can say a modern version, or a proxy war 2.0. 10th is Europe's largest nuclear reactor has been shut down. And in this particular news, we are seeing developments from past 1 week, and we are seeing that United Nations is trying to interfere there. Zaporizhia is the name of the nuclear plant where Russia has taken over the nuclear plant, and Ukrainian workers are still working inside. Now, Europe is fearing that this particular nuclear reactor, if not provided electricity, if not electrical connections are stabilized over there, it might lead to nuclear meltdown, and the disaster could be as big as Japan's Fukushima nuclear disaster, or you can say Russia's Chernobyl disaster. So, in all of that, right now today we are getting a conclusion that this particular nuclear reactor has been shut down. So beginning with today's current affairs, the very first topic, that India is about to be self-sufficient in fertilizer manufacturing. Now you see, nano urea is there in news. So what is nano urea? All right. Nano urea is basically you can say a chemical fertilizer that focuses on. So it is a form of chemical fertilizer. It is a form of chemical fertilizer, and you see that this is patented. This is patented. Patented means that India ने ये यूरिया जो है, ये नानो यूरिया जो है, ये बनाया है, और ये हमारे यहाँ इंडिजिनसली एक लिक्विड है जिसमें नैनो पार्टिकल्स हैं, किसके? यूरिया के. द मोस्ट क्रूशियल केमिकल फर्टिलाइजर फॉर फार्मर्स इन इंडिया इज यूरिया. अ सिंगल हाफ लीटर बॉटल ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड can compensate for a 45 kilogram of bora of urea, which means the input cost in agriculture production is going to get down and down, which is definitely going to affect the prices of the food products. So definitely it is good. But the only problem with this particular nano urea is that it is applied in 2 stages. When it is applied in 2 stages, it will help the crop once the crop is out of, you can say, जब रूट डेवलप हो चुका है, जब फसल जो है मिट्टी के ऊपर आ चुकी है, तब आप इस यूरिया को अप्लाई करेंगे तो इसका फायदा होगा. लेकिन वहीं दूसरे केस में ये देखा जा रहा है कि हमें जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो फिर भी पड़ेगी. तो ऐसे में ये फर्टिलाइजर कितना हद तक कारगर होगा, ये समझने वाली बात है. इसी के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बोला कि हमें ये नया फर्टिलाइजर अप्रूव करना पड़ेगा, और अप्रूव करने के पहले कुछ टेस्टिंग करानी पड़ेगी, और अप्रूव अगर हो जाएगा तो हम 2025 तक इंडिया का जो डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन का टारगेट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. इसमें आप एक इंटरेस्टिंग बात देखोगे कि 90 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के बच सकते हैं जो हम यूरिया को इंपोर्ट करने में या फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करने में लगाते हैं. अभी द हिंदू के एक हफ्ते पहले ये खबर थी कि इंडिया जो अपना डायमोनियम फॉस्फेट है, डैप नाम का फर्टिलाइजर है, बड़ा इफेक्टिव फर्टिलाइजर है, ये 100% इंपोर्ट करता है. अब आप अपने फूड सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और फर्टिलाइजर्स के बिना फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, फूड प्रोडक्शन उतने क्वांटिटी का इंश्योर करना बड़ा मुश्किल है. इंडिया इज अ नेट कंज्यूमर ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स, या अपने जो भी फूड प्रोड्यूस करता है उसका नेट कंज्यूमर है इंडिया. बहुत कम ही मात्रा में एक्सपोर्ट करता है. इतना बड़ा राशन कार्ड का सिस्टम बना रखा है. तो हमारे लिए फर्टिलाइजर में सेल्फ डिपेंडेंट होना, ये हमारी सेल्फ सफिशिएंसी और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड that is the kind of applaud we need to give to Indian Council of Medical Research as well as IFCO, जिसने ये नानो यूरिया नाम का एक यूरिया बनाया है. अब ये शुरुआत है, this is the start, and definitely this is going to get bigger and bigger, right? So interestingly, this can be a question point of view that fertilizers are recognized as essential commodities under Essential Commodities Act 1957, and that is why
the government is able to provide subsidies for fertilizers. Though World Trade Organization has consistently criticized or condemned India's stand that why the government interferes so much with agriculture production, but they don't understand that India is a unique geography. India has certain own challenges. Wheat and rice is not grown everywhere, whereas everywhere the consumption is only wheat and rice. The staple diet is wheat and rice, but it is not produced everywhere. So we need to make sure that the wheat and the rice that is being produced in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal in large quantity has also to be provided to Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, where it is not sufficiently grown. So for all that matter, government does what? Interferes in प्रोवाइडिंग यू MSPs. आपको पता है फसल पे किसानों को MSP देती है. MSP जो है ये 1.5 टाइम्स ज़्यादा देती है एज कम्पेयर टू इनपुट कॉस्ट. अब अगर आपकी इनपुट कॉस्ट हम कहें, इनपुट कॉस्ट हमारी अगर कम जाएगी तो ऑब्वियसली हमारे MSP पे भी फर्क पड़ेगा, और जब हमारे MSP पे फर्क पड़ेगा तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक एक्सचेकर का मनी है, जो गवर्नमेंट पब्लिक मनी है, वो कम से कम बर्बाद होगा. इसीलिए ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे कि उसके स्टेट में क्वालिटी फर्टिलाइजर्स जो हैं और इंपोर्टेड फर्टिलाइजर्स जो हैं वो इंश्योर करे कि सप्लाई प्रॉपर हो. मूविंग फर्दर अहेड, अब हम अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो हमारे यहाँ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने सन 2001 में, और इसमें जो इंपॉर्टेंट है ये है कि हमें सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एक तरीके का था ये, जिसमें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम अप्रूव क्राइटेरिया के हिसाब से सर्टिफिकेशन दे रहे थे, और साथ ही साथ हम फैसिलिटेट कर रहे थे सर्टिफिकेशन इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स के हिसाब हों. इन सब चीज़ों में बेसिकली हमने क्या किया, जो श्रीलंका ने क्या किया, सारे फर्टिलाइजर्स का बेसिकली इंपोर्ट बंद कर दिया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करने की बात करी. लेकिन हमने ये काम एक को इग्नोर करके नहीं किया. हमने ये काम हम इंपोर्ट करते रहे, लेकिन हमने साथ में अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्शन पे भी शुरुआत कर दी थी कि हम अपने ही कंट्री के अंदर से फर्टिलाइजर्स ग्रो करेंगे. तो ये याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने स्टार्ट किया था, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में. ये देखने वाली बात है. दूसरा, एक एपिडा नाम की अथॉरिटी बनाई हमने, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी. भी देखिए, एक्सपोर्ट से ही हम कमा सकते हैं. जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट की इनकम होगी, और उतना ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने फार्मर्स की इनकम सिक्योरिटी को मैनेज कर सकती है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अथॉरिटी जो है, ये 1986 में स्टैब्लिश की गई एक एक्ट के तहत, अपीडा एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई. ऑल राइट, सो अपीडा एक्ट 1985 का था, बॉडी फोर्स में आई 1986 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर फंक्शन करती है. इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन भी आ चुका है पास्ट ईयर में 2018 में इन्हीं सारे एरियाज पे. इनमें से पूछा गया है आपको कि विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इज ऑपरेटेड अंडर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड Export Development Authority functions as a secretariat for the implementation of NPOP, and Sikkim has become India's first fully organic state. Now, if you notice these two particular directions, I already told you that NPOP does not work under Ministry of Rural Development, it works under Ministry of Commerce and Industry. Now, for that matter, only 2 and 3 are correct. So, 2 is correct because yes, Export Development में Secretariat of NPOP की तरह ही काम करता है. जैसे कि NPOP में हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसी वाले ऐसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. तो ये चीज़ जो है सही है. सेकंड जो है, सिक्किम है इंडिया का फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है. अब इसमें मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखिए 2016 का द हिंदू का आर्टिकल है, 2016 का आर्टिकल है, और वहाँ पे क्वेश्चन आया है सन 2018 में. इसका मतलब आपको देखिए द हिंदू का इंपॉर्टेंस देखिए कैसा है. ऐसा नहीं है कि आज का ही हिंदू आपको पेपर में आएगा, बट जनरली के लिए ये चीज़ें जब ऑर्गेनिक फार्मिंग 2001 में हमने स्टार्ट कर दी थी तो उसके बाद कौन सा स्टेट है, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए. इसीलिए कहते हैं अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको ये पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 and 3. आगे बढ़ें. ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो ये मीटिंग है, इसको साउथ जोनल काउंसिल की, इस साउथ जोनल काउंसिल की मीटिंग में बेसिकली जो स्टेट्स पार्टिसिपेट किए हैं वो केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पुदुचेरी है,
right? These are the areas, these are the particular regions who have participated in this particular meeting. And in this particular meeting, this was the 30th Southern Zonal Council की मीट केरला में हुई, and it is chaired by Home Minister. Always remember, the zonal councils meetings are chaired by Home Minister. The zonal council meetings that does what? Basically tries to establish a good relations between, you can say, the central government and the states, try to address the problems of these states differently. देखो भाई, इंडिया में जो वेस्टर्न साइड पे स्टेट्स हैं उनका अलग प्रॉब्लम है, जो ईस्टर्न साइड में स्टेट्स हैं उनका अलग प्रॉब्लम है. सदर्न स्टेट्स में अक्सर आप सुनते रहते हो कि पानी को शेयर करने के हिसाब से बड़ी लड़ाई झगड़ा होता है उनमें. कोई तुंगभद्रा नदी पे, कभी कृष्णा पे, कभी कावेरी पे, कभी आंध्र प्रदेश कर्नाटका में, कभी महाराष्ट्र कर्नाटका में रिवर वाटर शेयरिंग को लेके काफ़ी प्रॉब्लम रहता है. प्लस और भी चीज़ें हैं वहाँ पे, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, बिजली प्रोडक्शन की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, तो इन सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है. और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस बार इस मुलाकात में ये पाया कि हमें ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम ड्रग जो है वो कोस्टल स्टेट से आता है. और सारे के सारे सदर्न स्टेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबके पास अच्छी खासी लंबी कोस्ट लाइन है. तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह कहा है कि जो हमने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है एनकॉर्ड सन 2016 में आप उसको प्लीज एनफोर्स करिए, उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करिए ताकि हम नारकोटिक्स को कंट्रोल कर सकें. इन पूरे मैटर में 26 इश्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए, जिसमें से 9 रिजॉल्व कर दिए गए और 17 को फर्दर रिजर्व किया गया है कंसिडरेशन के लिए, जिसमें मैक्सिमम जो रिजॉल्व हुए हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं. जोनल काउंसिल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जोनल काउंसिल्स क्या है, देखिए ये एडवाइजरी काउंसिल्स हैं. कैसी बॉडी हैं? एडवाइजरी, यानी इनका डिसीजन किसी भी तरीके से किसी पर भी बाइंडिंग नहीं है. ये इंडियन स्टेट्स के द्वारा बनते हैं. 5 जोन्स में हमें बांटा गया है ताकि स्टेट्स के बीच में कोलैबोरेशन हो सके. तो आप कह सकते हैं कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता हुआ एक काउंसिल है. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. अच्छा, ये हमने स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए कब बनाया? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बनाया जोनल काउंसिल्स को. 5 जोनल काउंसिल्स बनाई जिनको हमेशा चेयर करेगा यूनियन होम मिनिस्टर. रोटेशन के हिसाब से ईच चीफ मिनिस्टर सर्व्स एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, मेंटेनिंग ऑफिस फॉर अ ईयर एट अ टाइम, है ना. ये डेलिब्रेशन और एडवाइस के लिए बॉडी है. इसका पर्पस ये है कि इंटर स्टेट कोऑपरेशन बढ़ा सकें, कोऑर्डिनेशन बढ़ा सके, इंटर स्टेट्स के बीच में आपसी सहमति करा सकें बाय द एबल गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ व्हाट आर द 5 zonal councils that we have? So we have the Northern Zonal Council, the Central Zonal Council, the Eastern Zonal Council, the Western Zonal Council, and the Southern Zonal Council with the respective states included in it. I think that kind of detail is a memory specific detail, so you can try to read it from the slide itself. Moving further ahead, अगर हम आगे बढ़ें तो Council for the North East भी एक बाद में बनाया गया, 1972 में बनाया गया. और उसमें हमने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं इनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इनको आप लार्जली अपने मेजर स्टेट्स के साथ डील नहीं कर सकते. ये अलग तरीके के स्टेट्स हैं, अलग इनकी ज्योग्राफी है, अलग इनका कल्चर है, इनके ट्रेडिशंस अलग हैं, इनकी मान्यताएं अलग हैं, इनका रहन सहन अलग है, इनका खान पान अलग है, इनमें जातियां भी काफ़ी ज़्यादा अलग हैं. आप देखोगे तो ये वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं. और इनमें से 4 स्टेट्स को शेड्यूल 6 में स्पेशल प्रोटेक्शन मिल रखी है ना. तो अब आपके सामने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है. तो ये क्वेश्चंस को में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा. ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये आपके एपेटाइट को बिल्ड करेगा, आपके एप्टीट्यूड को डेवलप करेगा और आपको बेसिकली किस जगह लुकआउट करना चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू वॉच फॉर इन द न्यूज़पेपर व्हेन यू आर रीडिंग द करंट अफेयर्स. दिस क्वेश्चंस विल हेल्प यू. सो कंसीडर द फॉलोइंग बॉडीज: नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, द जोनल काउंसिल एंड इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स. विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? दैट इज व्हाट यू नीड टू टेल. नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, Zonal Council, Interstate River Dispute Tribunals. Now understand that if you say it is NHRC, you need to read about NHRC from Lakshmikant. If you say Zonal Council again from Lakshmikant. Interstate River Dispute Tribunals, that is not given in the Lakshmikant. But please notice on this word tribunal and what I am saying, constitutional bodies कौन सी हैं. अब ये मैंने आपको क्लू दे दिया है बहुत बड़ा. इसका मतलब आपको ये समझना पड़ेगा ट्रिब्यूनल क्या है, और आपका इंडियन पॉलिटी से ये क्वेश्चन आ रहा है तो वही हम कहेंगे कि ये GSP 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मुझे बताइएगा और
हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किसका आंसर सही है। तो 1 एंड 2 करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकता है, 2 एंड 3 करेक्ट हो सकता है, या इनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये हमारा हो सकता है कि करेक्ट आंसर हो। तो आप प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी ऐसे करके हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज 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 जरूर बताइएगा। आपके पार्टिसिपेशन से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और मजा आता है, मेहनत करने का मन करता है फिर आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ें। ये न्यू राजपथ और पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये इनॉग्रेट हो गई है। राजपथ बोलें वो कौन सा रास्ता होता है, राजपथ क्या होता है? देखिए, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का ये जो 2 किलोमीटर का रास्ता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं राजपथ। और राजपथ यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो है डेवलप कराया जा रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर सितंबर 8 में क्या करेंगे? इनॉग्रेट कर देंगे और फिर अगली बार पब्लिक को ओपन हो जाएगा। इसमें इंडिया गेट के चारों तरफ ये बेसिकली मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे 16 स्टेट्स के स्ट्रीट फूड्स लग सकेंगे। मतलब एक तरीके से आप खाने के माध्यम से हर स्टेट के कल्चर को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है दिल्ली के लिए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। प्लस आप सोचिए, आप दिल्ली में जा रहे हो और यू आर गेटिंग द टेस्ट ऑफ इंडिया, सो फॉरेन टूरिज्म को कितना प्रमोट करेगा। करेक्ट है कि नहीं? और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आइसक्रीम कार्ट्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स, टॉय सेलर्स, सबको राजपथ में जगह मिलेगी अपनी दुकानें लगाने के लिए। मतलब एक तरीके का पूरा टूरिज्म हब होने वाला है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट का। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 1100 व्हीकल्स की पार्किंग कैपेसिटी बनाई गई है, 50 सिक्योरिटी गार्ड्स लगे रहेंगे, 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं कहा, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरा दिल्ली को ओवरहॉल कर दिया एक तरीके से। इसी में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, ये यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। यूपीएससी बिल्कुल आपसे व्हेन, हु, वेयर वाले क्वेश्चंस नहीं पूछता है, वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछता है। हाँ, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, स्टेट पीएससी का पेपर दे रहे हो, एमपी का, यूपी का, बिहार का, राजस्थान का, वहां पे आपको ऐसे एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चंस पूछने को देखने को जरूर मिलेंगे। तो हमारा बेसिकली करंट अफेयर्स है, तो हम सभी डोमेन को इंक्लूड करते हुए चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द चीफ आर्किटेक्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग एज इट एग्जिस्ट टुडे, यानी कि अभी जो मौजूदा स्थिति में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है, उनमें से चीफ आर्किटेक्ट इसके कौन थे? एडविन ल्यूटेंस, हर्बर्ट बेकर, हेनरी आयरविन, अनीश कपूर। अब इनमें से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो दिया हुआ है आपको ओनली 4, both 1 and 2, both 1 and 3, 1, 2 and 3. So among these आप क्वेश्चन में लिखेंगे 2 का A, 2 का B, 2 का C, 2 का D, ये चीजें आप लिखेंगे और प्लीज हमें अपने कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का ये वन पहली खबर नहीं है, आई थिंक ये तो मिस टाइप हो गया है। ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बढ़ रहा है, तो हमें सिर्फ ट्रेड डेफिसिट पे फोकस करना है दोस्तों, वन पे नहीं फोकस करना है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। देखिए, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट मतलब किसी चीज की कमी। देखिए, जब आप इंपोर्ट ज्यादा करोगे किस चीज से? एक्सपोर्ट से। तो आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट खरीदने का मतलब आप क्या कर रहे हो डियर? खरीद ज्यादा रहे हो और बेच कम रहे हो। तो जब ये कंडीशन हो जाती है तो इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो गया आपकी इनकम से, और आप किस में चले गए डियर? आप चले गए लॉस में। तो ऐसे लॉस को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्रिवन होता है उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का कहा जाता है हमेशा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में ही रहेगा, हमेशा जो ट्रेड है वो डेफिसिट में ही रहता है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो ऑयल इंपोर्ट्स में चला जाता है। ऑयल इंपोर्ट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम इसको ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते। क्या आपको पता है अभी करेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% कर देगा पेट्रोल में। क्या वो ईयर जानते हैं किस ईयर तक ये टारगेट सेट किया है नीति आयोग ने? डू यू नो अबाउट दिस? ये खबर में आ चुका है, आई थिंक आपने पढ़ा भी है। और ये 20% हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है 2030 तक, ताकि हमारा पेट्रोल को इंपोर्ट करने का कॉस्ट कम हो सके और हम अपने ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें। देखिए, एक वर्ड है ट्रेड डेफिसिट, दूसरा वर्ड है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में थोड़ा डिफरेंस है। फिस्कल डेफिसिट वो होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट एक ऐसा वर्ड है जब गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर जो है, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो क्या रहेगा? वो ज्यादा रहेगा गवर्नमेंट के इनकम से। गवर्नमेंट इनकम कैसे करती है?
तो गवर्नमेंट इनकम कैसे करती है? गवर्नमेंट की जो इनकम रहती है वो बेसिकली कहाँ से आती है डियर? गवर्नमेंट की इनकम आती है इनकम टैक्स से। गवर्नमेंट की इनकम आती है इनकम टैक्स से। पर एक बात बताइए, क्या जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम कर रहे हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट की कोई इनकम हो सकती है? नहीं, उसमें तो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। हाँ, गवर्नमेंट भी कभी कभी गवर्नमेंट की कंपनीज भी एक्सपोर्ट करती हैं, पर वो गवर्नमेंट की इनकम थोड़ी कहेंगे हम उसको। वो तो अगेन वही हो गया ना एक तरीके से कि आप कितना प्रोडक्शन आपका कैसा है। अब उसमें गवर्नमेंट की इनकम तो डायरेक्ट टैक्सेस से होती है ज़्यादा। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, आपका इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, गवर्नमेंट यहाँ से कमाती है। और गवर्नमेंट कमाती क्यों है? क्या प्रॉफिट मेकिंग बॉडी है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का काम है आपका बेनिफिट करना, आपके लिए वेलफेयर स्कीम बनाना। तो हमेशा हमारे यहाँ पे क्योंकि गरीबी हटानी है, भुखमरी हटानी है, हंगर रिमूव करना है, हेल्थ प्रोवाइड करना है, तो गवर्नमेंट का खर्चा हमेशा क्या होता है? पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा ही होता है। फिजिकल डेफिसिट में भी हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि अगेन वही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल इंपोर्ट पे ज़्यादा है। और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, देखिए ट्रेड डेफिसिट बेसिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रिलेटेड है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो हम इसको डायरेक्टली पेट्रोल से एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वी कैनॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड डेफिसिट विद द पेट्रोलियम, बिकॉज पेट्रोलियम जो है वो गवर्नमेंट खरीदती है। हमारे यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स तो खरीदते नहीं है पेट्रोल, तो गवर्नमेंट खरीदती है। तो गवर्नमेंट का जो खर्चा और देखा जाता है वो फिजिकल डेफिसिट से देखा जाता है। अब हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ट्रेड डेफिसिट कब हो सकता है? ट्रेड डेफिसिट तब हो सकता है जब आप देखिए दुनिया के लायक चीज़ें आप ज़्यादा बनाओ नहीं और आप ज़्यादा बेच ना पाओ, या दुनिया आपके फूड प्रोडक्ट्स को, आपके जो भी यू कैन से मेटलिक प्रोडक्ट्स हैं, मेटल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, हेवी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं, वो खरीदे ना, तो आप क्या करोगे? आप बेच कम पाओगे। अगेन आपको इंपोर्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि इंपोर्ट करने से फायदा है। हमारे यहाँ इंपोर्ट करने से फायदा क्यों है? कि देखो कंजम्पशन लेवल जो है, कंजम्पशन का जो तरीका है, जो तौर तरीका है, जो मार्जिन है, वो अलग अलग है भाई। कहीं पे कोई 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खा लेता है, कहीं पे किसी को 20 रुपए का जिम जाम चाहिए, कहीं पे किसी को बॉर्बन बिस्किट चाहिए। तो हमारे यहाँ कंजम्पशन लेवल्स अलग अलग है, लाइफस्टाइल अलग अलग है, तो हमारे पास एक्सेस टू डिफरेंट इंटरनेशनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स होना चाहिए भाई। ये अच्छी बात है इंडिया के लिए, लेकिन उसकी भी सीमा अपने आप में एक है। आप इंपोर्ट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। आपको इंपोर्ट को कोशिश करना है सब्सटीट्यूट करने का, इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करना है हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के साथ। आई थिंक आत्मनिर्भर भारत को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप पाओगे आत्मनिर्भर भारत का यही कॉन्सेप्ट है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें इन्होंने कहा, मिस्टर सुब्रमण्यम है, ये हमारे सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर कॉमर्स मिनिस्ट्री के। इन्होंने बोला कि देखिए क्रिसमस की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे हमारे ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसिल हो जा रहे हैं या उनको डेफर कर दिया जा रहा है। तो एक्सपोर्टर जब हैं, जब वो उनका माल बेचने जा रहे हैं, शिपमेंट कर रहे हैं, तो उनको वहां से आ रहा है कि आप शिप डिस्पैच मत करिएगा। ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन ही है, एक तरीके का ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ही है, जहां पे एक्सपोर्ट आइटम्स जैसे कि वीट, स्टील और आयरन जो है ये बेसिकली इन्फ्लेशन का शिकार हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और लोग इसको खरीदना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और मिस्टर सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि इंडिया का जो आउटबाउंड शिपमेंट है 2022-23 का, वो 470 बिलियन डॉलर्स टच कर जाएगा। एटलीस्ट 450 बिलियन डॉलर्स तो वर्स्ट के सिनेरियो में टच करेगा ही करेगा। और इसको अचीव करने के लिए हमें अगले 7 महीने में 36 से लेकर 39 बिलियन डॉलर्स का जो एक्सपोर्ट है वो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में ये इंटरनेशनल मार्केट में पूरा क्रिसमस का माहौल है। अब क्रिसमस के माहौल में आपको पता है कि वो एक हफ्ते कुछ नहीं करते। क्रिसमस जो ऑब्जर्व करते हैं वो एक हफ्ता कुछ भी काम नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं है व्यापार कैसे चल रहा है। इट्स देयर वन टाइम हॉलीडे, तो उसको अच्छे से मनाते हैं। इसी चक्कर में हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हो रहा है। और ये ग्राफ आपको देखिए बताने की कोशिश करेगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट उतना ही रहा है, थोड़ा सा कम ही हो गया है। मेरा अगर आप इंपोर्ट बात करें तो आपको इंपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करे? अगर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखो, ट्रेड डेफिसिट हमारी इकोनॉमी के लिए घातक है, और घातक है तो इसमें हमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से तो इंटरफेयर करेगी करेगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है ये तो आपने समझ ही लिया है। अब गवर्नमेंट क्या करती है वो समझ लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट अगर इम्बैलेंस लगातार काफी लंबे समय तक बना रहे तो गवर्नमेंट फिर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अपना बेचती है, वो बेचती है, ऑब्टेन एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज। बेचेगी मतलब कहने का मतलब यही है कि जो बेसिकली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारा मनी सेव्ड है फॉरेन एक्सचेंज में, द मनी दैट वी हैव, राइट, गवर्नमेंट क्या करेगी इस चीज़ को बेसिकली, क्योंकि हमारे पास इनकम कम है
तो गवर्नमेंट बेसिकली अपने फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने की कोशिश करती है, फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज करने की कोशिश करती है और उससे हमारी लोकल करेंसी जो है वो फॉल हो सकती है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्बैलेंस को फिल करने के लिए लार्जर ट्रेड डेफिसिट नेसेसिटेट्स रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। हमें चाहिए भैया कि फॉरेन से हम पैसा अपनी कंट्री में मंगवाएं। अगेन हमारा ये केस से क्या होता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है क्योंकि लोग इन्वेस्ट करेंगे डॉलर में और हम उसको कन्वर्ट करेंगे रुपये में, और वो जो डॉलर है, एक्स्ट्रा डॉलर है, उसको हम अपने फॉरेक्स रिजर्व में डाल देंगे, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता हुआ चला जाएगा और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट जो है उसको हम दिखा देंगे कि भाई कोई बात नहीं, हमारे पास डॉलर्स में इतने पैसे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्या हुआ अगर हमारे यहाँ कंट्री में लोग ज़्यादा बेच नहीं रहे हैं इंटरनेशनली, तो हमारे पास पैसा फिर भी है। अगर बिकॉज मोर इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो फ्यू जॉब प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं और एक ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जॉब्स को भी आउटसोर्स करना पड़ सकता है दूसरी कंट्रीज में। और डिमांड फॉर इंपोर्टेड आइटम्स क्या करता है, डिक्रीज कर देता है लोकली प्रोड्यूस गुड्स को, इसीलिए फैक्ट्री क्लोजर्स और जॉब लॉसेस को मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और क्या बोलेगी, कहेगी डियर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन चालू करो, चलो जूते बनाते हो यहाँ के जूते पहनो, यहाँ के डेनिम जैकेट्स पहनो, यहाँ के कपड़े पहनो, इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट करती है। ये सारे मेजर्स हैं ट्रेड डेफिसिट को फिल करने के लिए। आगे बढ़ें, इंडिया का जो तेजस एयरक्राफ्ट है इसको हम टेक्निकली कहते हैं LCAMK2, दैट इज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mark 2 एंड दिस इज अ पर्टिकुलरली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जिसको हमने टेस्ट कर लिया है और बेसिकली टेस्ट कर लिया है, डेवलपमेंट कर रहे हैं 2027 तक। 9,000 करोड़ का प्रोडक्ट है, ये हमें मिल जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको क्या कर दिया है, इस मॉडल को गो दे दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है और DRDO जो है वो 2027 का टारगेट सेट किया है। अभी करंटली जो हमारा LCAMK1 है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है और उसके हिसाब से माने तो 31 LCA जो हैं वो हमारे टोटल बनाए गए हैं, जिसमें 26 हमारे काम के हैं, 26 को हमने डिलीवर कर लिया है और बाकी सारे जो हैं वो कस्टमर को डिलीवर किए जाएंगे। और कस्टमर कौन है, वही डिफेंस मिनिस्ट्री है। HAL ने कहा कि हमने सेकेंड असेंबली लाइन भी सेटअप कर दी है और 16 एयरक्राफ्ट हम पर ईयर बनाएंगे और टोटल 83 MK1A जो एयरक्राफ्ट हैं वो 2028-29 तक कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, ये MK1 जो एयरक्राफ्ट है ना, ये आसपास की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी हमसे खरीद रही हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट छोटे होते हैं, कम फ्यूल पे चलते हैं, काफ़ी अच्छे मैन्यूवर्स कर लेते हैं, स्पीड अच्छी होती है इनकी और इनकी मारक क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो MK2 जो बना रहे हैं वो ये जो बना रहा इंडिया बना रहा है बड़ा स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि ये स्काल्प और क्रिस्टल में जो स्पाइस 2000 जैसी बड़ी बड़ी जो मिसाइल्स होती हैं उनको झेल सकता है। तो अपने आप में ये हमारे डिफेंस सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप कभी आंसर लिखें या आपको सामने क्वेश्चन आए कि इंडिया डिफेंस में कैसे सेल्फ सस्टेनेबल बन रहा है या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है DAC उसका क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने सुना अभी सुखोई उखोई एयर क्रैश कर रहे थे, तो कहीं पे भी अगर आपको इस तरह की चीज़ें सुनने में आए तो आप LCAMK2 INS विक्रांत इन सब के बारे में मेंशन करके अपने आंसर को, अपने प्रेजेंटेशन को और स्ट्रांग बना सकते हो। जस्टिस चंद्रचूड़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जाने माने चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये काफ़ी फेमस हुए थे KS पुट्टास्वामी में जजमेंट देने के बाद। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया था 2017 का, इसमें राइट टू प्रिवेसी में बोल दिया था इन्होंने कि भैया देखिए प्रिवेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तब से बड़े रिवॉल्यूशनरी टाइप के जज माने जाते हैं। ये एक ऐसे जस्टिस हैं जिन्होंने सबसे पहले कमेटी बनाई सुप्रीम कोर्ट की और तुरंत बोला कि यार जैसे ही कोविड हुआ तुरंत लाइव रिकॉर्डिंग चालू करो, तुरंत ऑनलाइन कोर्ट को लेके आओ। ये पूरे उस चीज़ को हैंड ओवर मतलब इनको कर दिया गया और ये पूरा उसका मैनेजमेंट देख रहे थे। तो अभी क्या किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको DY चंद्रचूड़ को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द नालसा चुन लिया है और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने दैट हैज व्हाट हैज बीन स्टेटेड बाय द यूनियन लॉ मिनिस्ट्री इन द notification. Now Justice Chandrachud has taken up this position because this position became vacant after UU Lalit was elevated as the 49th Chief Justice of India. Now you will come to know that executive chairman of NALSA, that is National Legal Service Authority. What is NALSA? National Legal Service Authority. National Legal Service Authority is a statutory body formed at the central level to implement the Lokpal and Lokayukt in the country, right? Lokpal at the center and Lokayukt at the state level. Now NALSA is basically created to expedite the justice delivery system so that access to legal aid is provided to one and all.
nobody is deprived of access to legal aid, legal remedies, and for that NALSA is doing a splendid job. So NALSA is a body that is constituted at the center level, at the state level, as well as the district level. Now what is the act? Legal Services Authorities Act 1987, right? And in this particular, Chief Justice of India is the patron in chief. The second senior most judge of the Supreme Court of India is the executive chairperson of the authority. Please remember, patron in chief, Chief Justice of India, और second most senior most judge जो होगा वो क्या होगा? Executive chairperson होगा. Moving further ahead, throwing some light on the Bengali women freedom fighters. इसमें जो ये नाम है ये important है. हालिमा खातून, रजिया खातून, जुबेदा खातून, जैनब रहीम, सुगन शुबाला सरकार, दुखोर बिला देवी, लीला नाग, बीना दास, इनके बारे में इंफॉर्मेशन है. आप इसको रीड करने की कोशिश करिएगा. GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे यहाँ पे. अगेन आइट्स और पब्लिक पार्टिसिपेशन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. भाई देखिए, बंगाल को जब पार्टीशन किया गया था 1905 में, तो ये व्यक्ति कौन है जिसने बंगाल को पार्टीशन किया था? लॉर्ड मायो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लीव्सलैंड. अपने आंसर को क्वेश्चन नंबर 3 का A, 3 का B, 3 का C, 3 का D करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. अब आप देख सकते हैं ये जो ईस्टर्न बंगाल है ये आज क्या बन गया है? ये बांग्लादेश बन गया है. और ये जो आपका है ये बेसिकली वेस्ट बंगाल समझ में आता है. आगे बढ़ें. इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी में अपने एक्सपोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट करता हुआ दिखाई दिया. 121 बिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज 2019 में एक्सपोर्ट किए हैं, ऐसा एक्सिम बैंक का कहना है. अब इन सब में क्या आ सकता है? इन सब में देखिए आर्ट्स, क्राफ्ट्स, वीडियोस, डिज़ाइन अमंग अदर्स. इंडिया में काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ट्रेंड जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है. प्रोग्रामर्स जो हैं, गेमर्स जो हैं, वो काफ़ी सामने आ रहे हैं और अलग अलग तरह के ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं. वीडियो एडिटिंग चल रही है, CGI का काम, और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे यहाँ टैलेंट को जो प्रमोट करती है, स्किल को जो प्रमोट करती है, उसका जो एक्सपोर्ट है इंडिया बढ़ाते हुए नजर आ रहा है. तो क्या इस जगह पे हम हेवी इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट को और सर्विस के एक्सपोर्ट को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब हम कोशिश ये करेंगे कि ये चीज़ें डिक्लाइन ना हो, ये चीज़ें प्रमोट हो. तो एक्सिम बैंक ने अपनी पहली स्टडी करी है, रिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी नाम का एक रिपोर्ट निकाला है, और उसमें बोला है कि UN ने क्लासीफाई कर दिया था कि स्किल बेस्ड जॉब्स क्या होती हैं, स्किल बेस्ड सेक्टर्स क्या हैं, और उनके एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट किया जाए. तो उसमें आर्ट, क्राफ्ट, ऑडियो विजुअल डिजाइन और विजुअल आर्ट्स में इंडिया काफी अच्छा करते हुए नजर आया है. 2019 के डेटा, यानी कोविड-19 के पहले की हम बात कर रहे हैं. कोविड-19 के आने के बाद डेफिनेटली हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिला होगा. मूविंग फर्दर अहेड, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने $1.1 बिलियन की आर्म डील ताइवान को अप्रूव कर दी है. मतलब ये जो डील है इसमें बेसिकली उन्होंने 100 एयर टू एयर मिसाइल, 60 एंटी शिप मिसाइल्स. अब पेंटागन ने कहा कि हम ये सब टेंशन्स जो बढ़ रहा है चाइना के साथ उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. पेंटागन ने कहा कि ये देखिए जो इक्विपमेंट हैं, ये जो सपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, ये हमारा बेसिक मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन को ऑल्टर नहीं करेगा. बेसिक मिलिट्री बैलेंस इन द रीजन इज इन द फेवर ऑफ चाइना, वेयर एज इंडिया, एशियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ पे क्या करते हैं, ताइवान स्टेट के पास पेट्रोलिंग करते रहते हैं. और US ने बोला है कि देखिए ताइवान को हम ऐसा मिलिट्री सपोर्ट भी दे रहे हैं और नेवल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते रहेंगे. इंडो पैसिफिक रीजन में ले लीजिए, चाहे ताइवान स्टेट में आप ले लीजिए. तो ये वाले पर्टिकुलर न्यूज़ को आप रीड करिएगा. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरीके से US स्टेट डिपार्टमेंट जो है ट्रेड करता है अपने मिलिट्री वेपन्स की, और कहाँ लोकेटेड है ताइवान, क्या है ताइवान स्ट्रेट, ये सारी चीज़ों को आप जानने की कोशिश कर सकते हो. ये इंटरनेशनल रिलेशंस का एक पार्ट है, दो इट्स नॉट अ प्राइमरी पोर्शन, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत 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 कमी है. आगे बढ़ें. यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो शट डाउन हो चुका है. ये लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अभी इसी में कुछ दिनों पहले साइड में सब जगह बम गिरा दी थी, सेलिंग कर दी थी रशिया ने, और जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस थे वो खत्म हो गए. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर नाम की एक चीज़ होती है जिसको हमेशा ऑन रखा जाता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर ठंडा रहे. अब न्यूक्लियर रिएक्टर में अगर बिजली कट गई तो न्यूक्लियर रिएक्टर तो क्या हो जाएगा थोड़े समय के लिए. देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन है, उसको कोई मैकेनिकल एड नहीं चाहिए, वो एक बार स्टार्ट हो गया तो वो अपने आप चलता रहेगा. तो हमें उसको कूल रखना पड़ता है. कूल रखने के लिए हमें जनरेटर्स होते हैं पर्टिकुलरली जो डीजल पे चलते हैं. अगर डीजल लिमिटेड है, डीजल खत्म हो गया तो जनरेटर बंद हो जाएगा, जनरेटर बंद हो जाएगा तो न्यूक्लियर को फ्यूल को कूल करने वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, कूल करने वाली चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो सकता है, न्यूक्लियर मेल्टडाउन हो सकता है, और न्यूक्लियर रेडिएशन की संभावना है कि पूरे यूरोप में फैल सकती है. तो ऐसे में ये व्यक्ति जो आप देख रहे हैं ये IAEA के चीफ हैं, ठीक है, ब्रॉसी नाम है इनका. ये बेसिकली गए थे वहाँ पे यूक्रेन में चेक करने के लिए, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, और UN के न्यूक्लियर वॉच डॉग ने बोल दिया है कि हम उसको शट डाउन करा देंगे. तो
इसका नाम ज़ेपोरिजिया है और इन व्यक्ति का नाम आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिएगा। IAEA के चीफ का पूरा नाम क्या है और वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। ये पेपर में आपने पिछले एक हफ्ते में 1 वीक में लगातार इनके ऊपर खबरें देखी हैं। अब इस सेशन को हम बेसिकली प्राइमरी सेशन जो हमारा करंट अफेयर्स का है उसको हम क्लोज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, दैट इज IAEA के हिसाब से के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। द ऑप्शंस जो स्टेटमेंट्स है वो देख लीजिए। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस विच वॉज सेटअप इन 1957। रिपोर्ट्स ऑफ द IAEA इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया, और it is India is a founding member of IAEA. In this, you need to tell what statements are correct. Either 1 and 2, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4, or 1, 2 and 3. Now, this is your question number 4. So, I have given you 4 interesting questions. 2 are UPSC specific. The other 2 are state specific. You can say state PSC specific. And try to tell me 4 का A, 4 का B, 4 का C. ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन समझ में आएगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन पे आ जाएं कि वॉस्टॉक 22 में इंडियन नेवी ड्रिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, नेवल ड्रिल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक सी ऑफ ऑखॉट्स और सी ऑफ जापान के पास हो रहा है। वहाँ पे साउथ कुरिल नाम का आइलैंड है जो रशिया और जापान के बीच में कंटेस्टेड है। तो इंडिया ने बोला देखिए हम नॉन अलाइंड है, हम आपके पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप जानबूझ के अगर वहाँ पे मिलिट्री ड्रिल करा रहे हैं, नेवल ड्रिल करा रहे हैं, सॉरी वी वोंट बी अ पार्ट। सो दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज स्टेटेड। जापान के साथ सेंसिटिव रिलेशन है हमारे। जापान अभी काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा है। क्वाड के साथ हम मीटिंग कराते हैं, युद्ध अभ्यास कराते हैं, मलाबार एक्सरसाइज होती है, तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो हमें उनके साथ भी बैलेंस बना के चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें दुनिया को ये लगे कि हम रशिया को बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं। रशिया के साथ भी हमारे मतलब के ही रिश्ते हैं। समय समय पर वो भी हमारा इस्तेमाल करेगा, हम भी उसका इस्तेमाल करेंगे, पर हमें अपने इंटरेस्ट को इम्बैलेंस नहीं करना है। इन्फ्लेशन रेट हर स्टेट्स में अलग अलग क्यों है भाई? इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंस हो जाए। अब आपको पता है हर स्टेट का कंजम्पशन लेवल अलग अलग है, इसलिए वहाँ का इन्फ्लेशन रेट भी अलग अलग है। जिसमें कहा गया तेलंगाना इज द वर्स्ट स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन, 7% से ज़्यादा इन्फ्लेशन जा रहा है वहाँ पे। तो ये पूरा आर्टिकल में आपको ये समझाने की कोशिश करी गई है। हालांकि ये 2 पॉइंट में समझाया गया, बाकी सारी चीज़ें सिर्फ डेटा 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 है। तो आपको 2-3 चीज़ें समझ में आ जाएगी, बिकॉज कंजम्पशन पैटर्न इज डिफरेंट इन ईच स्टेट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ईच स्टेट इज ऑल्सो डिफरेंट। सो और दूसरा सप्लाई रिस्ट्रेंट्स लग रहे हैं इंटरनेशनली भी डोमेस्टिकली भी। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा हर स्टेट का इन्फ्लेशन जो है अलग अलग आ रहा है। इसके बाद यूजीसी किस तरीके से कॉलेज क्लस्टर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। कॉलेज क्लस्टर प्रोग्राम इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। सिंगल डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस को हम बेसिकली कई सारे इंस्टीट्यूशंस को एक साथ इंगेज कर लेंगे, आपस में एक यूनियन बना देंगे और सबके स्टाफ को शेयर करेंगे आपस में। तो इस तरीके से जो हमारे स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। वापस से अगर हम एक बार इंडेक्स पे आ जाएं, तो वापस से अगर हम अपने इंडेक्स पे आ जाएं तो इंडेक्स में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है एक बार फटाफट। और इसमें हमने देख लिया कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी नैरो यूरिया कैसे देगा। साउथ सदर्न जोनल काउंसिल के ऊपर डिस्कशन कर लिया। राजपथ के ऊपर यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी शूट किया है मैंने। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट वाइड हो रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। इंडिया इंडिजिनस तेजस जो है LCA MK2 को 2027 तक इंक्लूड कर लेगा। जस्टिस चंद्रचूड जी को नालसा का हेड बनाया गया है। व्हाट इज नालसा, वी डिस्कस दैट। बंगाली वुमेन फाइटर्स में मैंने आपको बोला नाम ध्यान में रखिएगा। फर्दर आ जाए, इंडिया जो है अपनी क्रिएटिव इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा कर रहा है। ये एग्जिम बैंक की रिपोर्ट आई है 2019 की। यूएस ने $1.1 बिलियन आर्म्स डील ताइवान को बेसिकली दे दी है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स और 60 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो है IAEA के हेल्प से शट डाउन कर दिया गया है। यूजीसी के कॉलेज प्रोग्राम पे वॉस्टॉक 2020 में इंडिया क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है नेवी में, और स्टेट्स के इन्फ्लेशन रेट्स क्यों अलग होते हैं। ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं और इस टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग देयर। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको हमें डिस्कशन में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो साइनिंग ऑफ टुडे, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस वेरी सून।